अपनी पत्नी, बेटे और मामा को गोली मारकर हत्या करने वाले एसएसबी के पूर्व जवान को आखिरकार पुलिस ने ढेर कर दिया। 3 घंटे तक चली गोलीबारी में पुलिस ने संजय दास नामक पूर्व जवान को मार गिराया। डिब्रूगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्रीजीत टी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मनाभ बोरा, डिब्रूगढ़ ओसी राजीव सैकिया, बरबरुआ ओसी गौरव सुतिया के नेतृत्व में पुलिस की टीम दिन से ही इलाके का घेराव कर हत्यारों को ढूंढ रही थी। 3 लोगों की हत्या करने के बाद व्यक्ति अपने घर के पास ही सुकनपुखरी स्थित मीन विभाग के खाली कमरे में साइको किलर छिपा हुआ था। रात लगभग 12 बजे पुलिस को इस बात की भनक मिलते ही वह मौके पर पहुंची और साइको किलर को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन हथियार डालने की बजाय उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 घंटे की गोलीबारी के बाद संजय दास नामक हत्यारे को पुलिस ने ढेर कर दिया। यहाँ बता दें कि संजय दास नामक पूर्व एसएसपी जवान ने न केवल अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की, बल्कि अपने सोते हुए बेटे को भी नहीं बख्शा। इस वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब संजय दास की पत्नी रसोई में काम कर रही थी। पत्नी स्वप्ना दास पर संजय ने नजदीक से गोली चलाई, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। पत्नी को गोली मारने के बाद पूर्व एसएसबी जवान ने अपने बेटे नवज्योति दास पर भी गोली चलाई, जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो गया था। हालांकि इलाज के दौरान नवज्योति ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वहीं पत्नी की हत्या करने और बेटे पर गोली चलाने के बाद फरार होते समय संजय दास ने 67 वर्षीय अपने मामा घनकांत दास की भी गोली मारकर हत्या कर दी। साढ़े 11টা যোৱাকালি ৰাতি এটা খবৰ পাইছোঁ এনেকুৱা মানুহে শুকানপুখুৰী চাইডতে সি সোমাই আছে বুলি। তাৰপিছত আমি ওচি বহুত বড়ো আমি পূৰা এৰিয়া পাৰণ অফ কৰিছোঁ। মোটামুটি 3 ঘণ্টা আমি কথা পাতিছোঁ। সি আমাৰ ওপৰতে গুলিয়াই ফায়াৰিং কৰিব চেষ্টা কৰিছে। আৰু তাৰপিছত আমি ফায়াৰ এণ্ড এমাৰ্জেঞ্চি সার্ভিস পৰা ল্যাডার পৰা এপ্রোচ কৰাৰ সময়তে আমাৰ ওপৰত ফায়াৰিং কৰিছে। আমিও ফায়াৰিং কৰিছোঁ। এইটো সময়তে সি মৰিলে সি ইনজৰ্ড, এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, ডক্টৰে ক'ব সি জিন্দা আছে। আপোনাৰ ফায়াৰ কৰিছিলে নেকি? আমাৰ ওপৰত ফায়াৰ কৰিছে। কিমান দেৰি কৰি আছে? 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা ফায়াৰ কৰি আছে। গুলি আছিলে তেওঁৰ ওচৰত? বহুত আছিলে। হয়, আমি 4টা-5টা তাত পালোঁ এই এমটি কেছটো, আৰু কিমান আছে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, পিছত কৰি আছে। পুলিচৰ ফালৰ পৰা কি হ'ল আৰু এনেকৈতো সেইটো কাহিনীটো হ'লেই দিনতে। তাৰপৰা পুলিচে এনেকৈ ইয়াত আহি পালে বুলি গম পাই তেওঁলোকে অলপ চোৱা চিতা কৰি কেনেকুৱাকৈ কি কৰিলে গুলি শব্দ শুনিছোঁ। গুলি শব্দ শুনাৰ পাছত আমিতো সাৰ পাই আছোঁ। তাৰপৰা ল'ৰাকেইজন আৰু মোৰ মানুহজন গৈছিলে শ্মশান দিবলৈ। শ্মশানৰ পৰা আহি পোনে সোমাইছে। সোমোৱাৰ লগে লগে গুলিৰ শব্দ, আৰু বাকী একো নাই। ঠিক ধৰক 1:30মান বজাত প্ৰথম এটা, তাৰপৰা 2টা 3টা 4টা 4:30 শেষ হয়। যোৱাকালি যিটো ঘটনা, সঞ্জয় দাস নামৰ ব্যক্তিজন এই পোহাৰীখনীয়া অঞ্চলত বৰ্তমান আমি য'ত আছোঁ, তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু পৰিবাৰক হত্যা কৰাৰ পাছত কালি, আৰু লগতে তেখেতৰ মোমায়েকক হত্যা কৰাৰ পাছত এই অঞ্চলতে আমাৰ যিখন ফিচাৰী আছিল, ফিচাৰীৰ ওচৰতে তেওঁ এটা ঘৰত পুলিচৰ তৎপৰতাত কালি পুলিচে যিখিনি তেখেতসকলৰ দক্ষতা দেখুৱাইছে, মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু পুলিচৰ দক্ষতাত আৰু এজন যে ব্যক্তি কোনোবা নমৰিলে সেইটো বা ৰক্ষা পৰিলে। আৰু ৰাতি এই গোটেই কথোপকথনৰ পাছত যিটো ঘৰটোৰ ভিতৰত তেওঁক যেতিয়া ডিটেক্ট কৰিলে, ঘৰটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নানা ধৰণৰ বাৰ্তালাপ হৈছে, মই অন্য মুখৰ পৰা মই শুনিছোঁ। বাকী যি কি নহওক, শেষত গৈ তেওঁ মানসিকভাৱে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই তেওঁ নিজৰ ৰিভলভাৰেৰে নিজকে হত্যা কৰিলে বুলি যিটো শুনিছোঁ। এই কথাটোৱে আমাৰ আগন্তুক দিনত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পৰিছে। এইটোৱে এটা শান্তিপ্ৰিয় অঞ্চল আছিল। ৰাইজে খুটি কৰি খাই নিজৰ জীৱিকা পালন আছিলে মধ্যৱৰ্তী পৰিয়ালৰ মানুহ। কিন্তু এই অঞ্চলত এই ধৰণৰ পৰিৱেশে আগন্তুক দিনত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পৰিব। মই ভাবোঁ যে এই কথাবিলাক আমি সামাজিকভাৱেও কিছুমান চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। কি কাৰণে এই মানুহজনৰ মৃত্যুবৰণ কৰিলে, কি কাৰণেনো এই ঘটনাখিনি হ'বলৈ পালে, কি কাৰণেনো সঞ্জয় দাসৰ এই অৱস্থাকৈ পালেগৈ। ইমান সুন্দৰ পৰিয়াল এটা, আৰু তেওঁ জনা বুজা মানুহ আছিল, SSBত কাম কৰিছিল, দেশ বিদেশত ঘূৰি ফুৰা ব্যক্তি এজন। এইটোৱে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আৰু সামাজিকভাৱে এই কথাটোত যথেষ্টখিনি ক্ষতি কৰিব। আমি এইখিনি ৰেক্টিফাই কৰাৰ কাৰণে আমি বিশেষ চেষ্টা হাতত
यहाँ पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आप फोन लाइन से जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रिपुंजय दास के साथ। जी रिपुंजय, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या ये जो पूर्व एसएसबी जवान था उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं थी, क्या कोई इलाज चल रहा था? जी नहीं दुलुमनी, ऐसा तो कोई सूचना हमें उनके परिवार वालों से या आसपास के जो लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, उनसे कुछ प्राप्त नहीं हुई है। और वजह इसके कि वो स्थानीय जो लोग हैं, उनके पास के उनके जो मित्र है, दोस्त यार है, सभी लोग बोल रहे थे कि ये तो कैसे ये घटना हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित है, क्योंकि उनके अनुसार संजय दास बहुत ही एक सजे हुए किस्म के आदमी थे, बहुत ही शांत, बहुत ही नॉर्मल किस्म के लोग थे, जैसे कि जनरली आम तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों में पाया जाता है, डिसिप्लिन तरीके के लोग थे। तो उनमें ये कब से ये जुए का या अवैध लॉटरी का लत लग गया, ये लोग वहां में हैरान चकित है। और जिसके चलते ही अभी पूरा मामला जो है उसी के एक गलत परिणाम, उसकी के एक अंजाम हुआ है, ऐसा लगता है। क्योंकि दुलुमने कल भी हमने बातचीत की थी उनके बड़े भाई से, उनका भी यही कहना था कि जुए की लत नहीं इसको पूरा ले डूबा है, उसके परिवार के ऊपर ये जो निसंस और चौंका देने वाली घटना हुई है वो पूरा इसी का अंजाम है। दुलुमनी जी रिपुंजय, जानना चाहेंगे कि क्या इन कारणों की वजह से शुरुआती तौर पे जो जांच की गई है, क्या इसमें कोई खुलासा हुआ है कि परिवार में उस दौरान कोई मनमुटाव चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा था? दुलुमनी, आज सुबह भी हमने डिब्रूगढ़ के एसपी से बात किया था उनका मोटिव के बारे में। तो उनका भी कहना ये था कि ये मल्टीपल मोटिव हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने ही परिवार के लोगों की अगर हत्या करती है, उसके भीतर जरूरी कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। इसको डीपली देखना पड़ेगा और इसके क्या एक्चुअली वजह हो सकती है, इसको डीपली। हाँ, पुलिस भी मान रही है कि एक जो जुए की जुए और अल्कोहलिज्म का जो इशू आया है खुल के सामने, ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है। और पुलिस भी इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन को अभी आगे बढ़ा रही है। जी रिपुंजय, जानना चाहेंगे कि क्या ये पूर्व एसएसबी जवान के परिवार में कोई और सदस्य फिलहाल मौजूद है या उनका परिवार की तरफ से कोई और जानकारी मिल सकी है? दुलुमनी, इनका जो अपना परिवार अगर आप कहें तो वो अभी कोई रहा नहीं, क्योंकि ये एसएसबी जवान अपने वाइफ और उनका एक ही बेटा था, तीनों अभी नहीं रहे। और लेकिन उनके बगल में वाला घर ही उनके बड़े भाई का है और उनके परिवार है वहां में। और आसपास के सभी लोग मतलब एकाएक आश्चर्य, जैसे कि पूरे लोगों को अभी तक वो उबर नहीं पा रहे हैं इस पूरे घटना को देख करके, किस तरीके से हो गया और कैसे हो गया, कैसे इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया, इस विषय पे अभी तक वो शॉक्ड है। दुलुमनी जी रिपुंजय, एक और बात यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि अब जांच टीम आगे की कार्रवाई किस दिशा में कर रही है? दुलुमनी, जैसे कि हमने कहा कि एसपी के अनुसार मल्टीपल रीजन में मोटिव की तलाश की जा रही है, कि जो जनरली वहां के लोगों का जो कहना है उस हिसाब से भी ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। जो जुए और नशे की जो उसमें उस इलाके में जो प्रचलन है उसको ऊपर कड़ी नजर बनाए और रख के इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जा रहा है। लेकिन हालांकि पारिवारिक कुछ कारण है न कि इसको भी पुलिस रूल आउट नहीं किया है, उसको भी देखेगी। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को नियुक्त कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल मोटिव को सर्च करते हुए ही होगा, ऐसा यहाँ के सीनियर पुलिस ऑफिसर का मानना है। जी रिपुंजय, आपसे जानना चाहेंगे कि बीती रात के इस पूरे वारदात के बारे में आपसे थोड़ी जानकारी जानना चाहेंगे। हाँ दुलुमनी, ये जो वारदात हुआ कल, उसके बाद से ये बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद शाम को बॉडीज को भेजा गया और इनका अंत्येष्टि क्रिया के ले जाने के बाद लगभग
9-10 बजे इनको लेके गया अंत्येष्टि क्रिया के बाद। उसी दौरान पुलिस को लगता है कि ये जो शख्स है संजय दास, जिसकी अभी मौत हो चुकी है, वो कहीं से वो थोड़ा गांव वाले वहां, क्योंकि वो सभी लोग जो शमशान की ओर रुख कर चुके थे, उसका फायदा उठाते हुए शायद वो आके वो अपने घर के लगभग 400 या 500 मीटर के दूरी पे ही जो एक सेक्लूडेड हाउस है उसमें उन्होंने श्रेय लिया था। और वो शायद वो रात को ही अपने बड़े भाई या उनके परिवार के ऊपर अटैक करने का योजना बना रहा था, जैसे कि उसने दिन में व्यक्त किया था लोगों को अपने बीवी और बेटे को निशाने बनाने के बाद। सो पुलिस को यही लगता है, तो पुलिस भी अपने कड़े नजर बनाया हुआ था इसके ऊपर। और जैसे ही पुलिस को मालूम पड़ा कि ये शख्स उस जगह में छुपा हुआ है, पूरा इलाका को घेराबंदी कर दिया गया था और इसको बार बार वार्निंग दिया जा रहा था कि सरेंडर करे, लेकिन पुलिस के अनुसार सरेंडर इन्होंने नहीं किया, उल्टा उन्होंने अपने पिस्तौल से फायरिंग शुरू किया। उसके बाद ही पुलिस को जवाबी कार्रवाई करना पड़ा और तकरीबन 3 और 3:30 के बीच गोलीबारी में ये ढेर हो गया और उसके शव को अभी आसाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिपुंजय हमसे जुड़ने के लिए और वहाँ की तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि पत्नी, बेटे और मामा को गोली मारकर हत्या करने वाले एसएसबी के पूर्व जवान को आखिरकार पुलिस ने बीती रात ढेर कर दिया है। 3 घंटे तक चली गोलीबारी में पुलिस ने संजय दास नामक पूर्व जवान को मार गिराया है।